السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول ماہ دوران کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں سجل سعید، اور یہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ 3 سال پہلے سینئر اسکول ختم ہو چکا تھا۔ نورے جونیئر اسکول میں تھی، جبکہ ہاتھ 2 سال کے ڈپلومہ کے بعد اب اپنا اسٹوڈیو کھولنے کی تیاری میں تھا۔ اپنے کریئر کے سلسلے میں کئی شہر بھی گھوم چکا تھا، ملک کے کئی ٹاپ گیلری ایگزیبیشن بھی اٹینڈ کر چکا تھا۔ زین گریجویشن کے فوراً بعد ہی دی سلطانز میں شامل ہو چکا تھا، اور اس وقت وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ایک اچھی پوسٹ پر تھا۔ سینئر اسکول ختم ہونے پر آج ان کی پرام نائٹ تھی، جس کی تیاری میں وہ کئی دن سے مصروف تھے۔ پرام میں ہر اسٹوڈنٹ کو اپنے پارٹنرز کے ساتھ شامل ہونا تھا۔ ماں کو اپنا پارٹنر سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جانتی تھی اسے رائد کے ساتھ ہی جانا ہے، لیکن پروگرام سے ایک دن پہلے اس کا یہ خیال ہواؤں میں تخیل ہو گیا تھا۔ رائد ایزابیلا کے ساتھ پرام میں جا رہا تھا، ماں نہیں، ایزابیلا کے ساتھ۔ یہ خبر اسے خود ایزابیلا نے اترا کر سنائی تھی۔ ڈوبے ہوئے دل کے ساتھ وہ اسکول سے نکلی تھی، جب رائد کی آواز پر رکی۔ تم گھر جا رہی ہو؟ ہاں، مختصر سا جواب دیا تھا۔ تم کل کس کے ساتھ آ رہی ہو؟ بغور اسے دیکھتے رائد نے پوچھا۔ پتہ نہیں ابھی، میں کسی سے پوچھ نہیں سکی۔ مجھے یہی لگا تم میرے ساتھ آؤ گے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن ایزابیلا نے مجھے پرام میں ساتھ چلنے کو بول دیا۔ ماں نے گردن اٹھائی، اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ اچھی بات ہے، ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، لیکن رائد اس کی مسکراہٹ جانتا تھا۔ گہرا سانس بھرتا، وہ فاصلہ مٹاتا اس کے نزدیک کھڑا ہوا۔ میں ایزابیلا کو انکار نہیں کر سکا، میں اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور میرا کیا؟ سوال زبان پر آنے سے پہلے ہی اس نے دبا دیا تھا۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں رائد، میں گھر جا رہی ہوں، پرام کے لیے ڈریس سلیکٹ کرنا ہے۔ وہ واپسی کے لیے مڑی۔ ماہ دوران نام کی زوردار پکار پر ماں سمیت رائد نے اپنی طرف بھاگ کر آتے ڈین کو دیکھا۔ پاس آنے پر چند سیکنڈ اس نے سانس بحال کیا، پھر دایاں ہاتھ ماں کی جانب بڑھایا۔ پرام نائٹ میں میری پارٹنر بنو گی؟ ڈمپل دکھاتا وہ پوچھ رہا تھا۔ رائد نے آنکھیں نکالے، اسے اور پھر اس کے بڑے ہاتھ کو دیکھا۔ ماں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ کچھ لمحے پہلے اپنے ہاتھوں میں تھاما اس کا ہاتھ ڈین کے ہاتھ میں دیکھتے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ نظر ان کے جڑے ہاتھوں پر ٹک سی گئی۔ اوکے، ماں کے جواب پر ڈین کی بتی سی مزید واضح ہوئی تھی۔ تم تو فلورا کے ساتھ آنے والے تھے؟ رائد کے سوال پر ڈین اور ماہ نے رخ موڑے اسے دیکھا۔ او سلطان، تم یہاں؟ اور فلورا سے میرا بریک اپ ہو گیا ہے۔ کب؟ 10 منٹ پہلے۔ منہ لٹکائے وہ اداسی سے بولا، لیکن اس کی اداسی کہیں سے اصلی نہیں لگ رہی تھی۔ سب جانتے تھے ڈین کبھی ریلیشنز کو سیریس نہیں لیتا تھا۔ میں گھر جا رہی ہوں، تم چلو گے؟ ڈین کو دیکھتے پوچھا گیا۔ ہاں۔ نہیں، ڈین کو میرے ساتھ کہیں جانا ہے۔ ڈین کا بازو کھینچ کر اپنی طرف کرتا رائد بولا۔ ہمیں کہاں جانا تھا؟ رائد کو دیکھتے نہ سمجھی سے پوچھا۔ ہاں۔ ماں ان دونوں کی جانب سر ہلاتی واپسی کے لیے مڑ گئی۔ کہاں جانا تھا ہمیں؟ ڈین نے دوبارہ سوال کیا۔ جہنم میں۔ اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑتا وہ واپس کیمپس کی جانب بڑھا۔ جہنم کیمپس میں تھوڑی ہے۔ ڈین اس کے پیچھے لپکا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑی وہ اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ پنک لانگ میکسی فراک اس کے پاؤں کو چھو رہا تھا، پیروں میں پنک کوٹ شوز تھے۔ اپنے سنہری بالوں کو ڈھیلے کرل ڈالے اس نے کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ کپڑوں کے ہم رنگ ہلکے سے میک اپ کے ساتھ وہ پیاری لگ رہی تھی۔ اگر لوگ کہتے تھے کہ وہ پھولوں جیسی ہے تو واقعی سچ کہتے تھے۔ وہ سچ میں پھولوں جیسی تھی، خوبصورت، نازک اور پیاری سی مسکراہٹ والی، جسے دیکھ کر سامنے والے کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ مکمل جائزہ لینے کے بعد وہ اپنا چھوٹا سا کلچ اور موبائل پکڑتی کمرے سے نکلی۔ اس کی دوست اور پرام کے پارٹنر کا گھر کچھ دور تھا، جس کے باعث اسے رائد اور ایزابیلا کے ساتھ وینیو میں جانا تھا۔ پورچ میں گاڑی کھڑی نہ دیکھ کر وہ مین گیٹ سے باہر نکلی۔ گاڑی باہر تھی، لیکن رائد غائب تھا۔ سامنے والے گھر پر نظر پڑتے اس نے قدم اس جانب بڑھائے۔ گیٹ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ قدم سست ہوئے، ذرا سی جھجک بھی تھی۔ وہ چاہے بچپن سے ساتھ تھے، لیکن وہ بہت کم
उस घर में आई थी। ये कहना बेहतर होगा कि वो अपने घर और स्कूल के अलावा बहुत कम कहीं जाती थी। अंदरूनी दरवाजे पर वो अपनी जगह पर ही रुक गई, क्लच को मजबूती से थामे। उसने दरवाजे से निकलते नफूस को देखा। दिल की धड़कन नॉर्मल से कुछ तेज़ हुई। महज उसको देखने पर ही रीम को अपने कानों और गालों से धुआं निकलता महसूस होता था। हाथ की नज़रें गिराज के बीचों बीच खड़ी रीम पर पड़ी, हाथों में क्लच थामे। वो कन्फ्यूज सी खड़ी उसे देख रही थी। चंद कदम मज़ीद बढ़ाने पर हाथ ने उसका मुकम्मल जायज़ा लिया। पिंक फ्रॉक में वो बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही थी, मोम सी नाजुक गुड़िया जिसे छूने से भी डर लगता था। रीम, अपनी आवाज़ से भी वो अपने जज्बात छुपाने से कासिर था। हाँ, सर हिलाए जवाब दिया। तुम प्रॉम में जा रही हो? हाँ, दरअसल राइड गाड़ी में नहीं था, मैं उसे देखने आई थी। नर्म सी आवाज़ में जवाब देने पर हाथ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली। जाने कितने सालों से वो उसे देख रहा था, और सिर्फ देख रहा था। पहले वो उसे अच्छी लगती थी, मासूम और प्यारी सी रीम, लेकिन अब वो अपनी जज्बात से खुद भी कंफ्यूज था। अब वो सिर्फ उसे अच्छी नहीं लगती थी, बल्कि अब दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम और एक ही चेहरा रहता था, और वो चेहरा उस वक्त उसके सामने मौजूद था। राइड अंदर है, वो माही से मिलने आया था। क्या क्या तुम उसे बुला दोगे मेरे लिए? श्योर, बल्कि तुम अंदर ही आ जाओ। वापस मुड़ते उसने दरवाज़ा उसके लिए वाक किया था। चंद सेकंड सोचती वो सर हिलाती लाउंज में दाखिल हुई। बाहर की सर्दी से अंदर आने पर यह गौना सुकून महसूस हुआ था। लाउंज खाली था, अलबत्ता ऊपर से नूरे और रायत के बोलने कम और बहस की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही थी। रीम, आवाज़ पर उसने मुड़कर अपने पीछे खड़े हाथ को देखा। तुम्हारे पोर्ट्रेट्स ले सकता हूँ? मेरे? आवाज़ में हैरानगी थी। बिल्कुल, और यहाँ तुम्हारे अलावा कौन है? क्या तुम्हारे पास टाइम है? उसके सवाल पर राइट को हैरत के साथ हंसी आई थी। अगर वो चाहे तो हाथ अपना सारा वक्त रीम को दे सकता था। ऑफ कोर्स रीम, जवाब देता वो बड़े बड़े कदम उठाता सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। उसे माँ के कमरे का पता था, क्योंकि वो उनके घर के बिल्कुल सामने वाली बैल्कनी वाला था और नूरे का कमरा उसके साथ वाला था। लेकिन हाथ का कमरा बैक साइड पर था, जहाँ से उनके घर का पिछला लॉन नज़र आता था। उनका घर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन पुरसुकून और खूबसूरती से सजा था। कदमों की आहट पर उसने हाथ को कैमरा थामे अपनी जानिब आते देखा। अपनी जगह पर ही खड़े, बॉडी को सीधा करो और यहाँ देखो। उसकी हिदायत के मुताबिक रीम ने हल्का सा रुख मोड़े कैमरे को देखा। क्लिक की आवाज़ के बाद हाथ ने कैमरा सामने किए, गालिबन उसकी खींची तस्वीर को देखा। प्रीटी, मुख्तसर सा लफ्ज़ था, लेकिन रीम को अपने गाल सुर्ख होते महसूस हुए थे। वो अपने ध्यान में थी जब मज़ीद क्लिक की आवाज़ गूंजी। क्या तुम मुझे ये सेंड करोगे? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? हाथ ने 2 कदम उसकी जानिब बढ़ाए। मुझे अपनी बेस्ट स्माइल दो। बेस्ट स्माइल? रीम ने उसे नासमझी से देखा। इस कलर में तुम बिल्कुल उस डॉल जैसी लग रही हो जो तुम बचपन में पकड़े रखती थी। रीम की आंखें हल्की सी वाह हुई थी। गर्दन से लेकर गालों तक गुलाबी रंग फैला था, और फिर वो सर झुकाए मुस्कुरा दी। उसके साथ ही क्लिक क्लिक की मज़ीद आवाज़ें सुनाई दी थी। परफेक्ट। कैमरे की स्क्रीन देखता वो गहरी सांस भरे बोला। वो दोनों अपनी जगह खामोश थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के जज्बात जानते थे। ज़बान नहीं तो आंखें हर बात कह देती थी। रीम ने उसकी तस्वीर देखते मुस्कुराते हुए हाथ को देखा। दिल में यह गोना सा सुकून उतरा था। वो इंतज़ार करेगी उस दिन का जब हाथ अपने मुंह से अपने दिल की बात का एतराफ़ करेगा। वो हाथ की थी और वो हाथ का इंतज़ार करेगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हाइद? तुम्हें तो इज़ाबेला के साथ होना चाहिए था। दरवाजे पर खड़े राइट को देखते हुए हैरत से बोली। मैं तुमसे मिलने आया था। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें उस डांस से पहले देखना चाहता था। हील की स्ट्रैप बंद करती वो रुकी। ब्लैक सिल्क गाउन में बालों को सीधा कर कमर पर छोड़े वो खूबसूरत लग रही थी। ब्राउन आंखें हैरत से दरवाजे पर खड़े राइट पर टिकी थी। ब्लैक टक्सीडो में उसका दराज कद मज़ीद दराज मालूम हो रहा था। सीनियर स्कूल के शुरू होते ही उसने और डैन ने जिम ज्वाइन कर ली थी। वो कद और जसामत के लिहाज से अपनी उम्र से कई साल बड़ा लगता था। ब्राउन बाल आज माथे पर लापरवाही से बिखरे होने के बजाय सलीके से पीछे सेट किए गए थे।
اور اس کی آنکھیں سمندر جیسی نیلی آنکھیں ہمیشہ کی طرح چمک رہی تھی، یا پھر یہ چمک سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر خود بخود اس کی آنکھوں میں اتر آتی تھی۔ یہ بات تمہیں ایزابیلا کو بولنی چاہیے تھی۔ بیلا کو کیوں بولتا؟ میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بیلا؟ ایزابیلا، اس کا نام ایزابیلا ہے۔ ہل کے سٹیپس ادھر ہی چھوڑے وہ سیدھی ہوئے بیٹھی، رائٹ بازو سینے پر باندھے، ٹانگیں کراس کے دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑا دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری پارٹنر ایزابیلا ہے؟ وہ صرف پروم کی پارٹنر ہے؟ مطلب؟ اس کے سوالیہ تاثرات پر ٹیک چھوڑ کر رائڈ نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ بیڈ کے نزدیک پہنچ کر وہ ایک پاؤں آگے کیے، پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ ماں کی آنکھیں اور منہ ایک ہی وقت میں واہ ہوا تھا۔ تم میری بچپن کی پارٹنر ہو۔ اس کی ہیل پکڑ کر دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اتنی لمبی ہیلز کے باوجود وہ اس کے کندھوں تک ہی آتی تھی۔ وہ ایزابیلا بھی ہے۔ نظر رائٹ کے ہاتھوں میں پکڑی اپنی ہیل کی جانب تھی۔ تم ہر بات میں اسے بیچ میں کیوں لاتی ہو؟ ہیل واپس زمین پر رکھے اس کے پاؤں کی جانب کھسکائی۔ تم نے اسے چنا ہے۔ رائٹ کے لب ذرا سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ ہیل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ماں نے پاؤں ہیل میں ڈال دیا۔ میں جیلس نہیں ہوتی، سرگوشی نما آواز میں ماں نے انکار کرنا چاہا۔ جیسا تم کہو۔ سٹیپس کے ساتھ جدوجہد کے بعد وہ بند کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا وہ واپس کھڑا ہوا۔ ماں نے سر اٹھائے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آنکھیں، ان آنکھوں کی وہ شوقین تھی۔ ان آنکھوں کو دیکھتے اس نے 12 سال گزار دیے تھے اور انہیں آنکھوں کو وہ اپنی ساری زندگی دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے ڈین سے پارٹنر بدل لینے چاہیے تھے۔ بغور اس سے دیکھتا وہ مسکراہٹ اچھالے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ رنگ ٹون کی آواز پر وہ فون کی جانب متوجہ ہوئی۔ ڈین کا فون تھا۔ غالباً وہ اس کی تیاری کا پوچھنے کے لیے فون کر رہا تھا۔ کال یس کرنے کے بعد فون کندھے اور کان کے درمیان سیٹ کیے باقی کی تیاری دیکھنے لگی۔ ہیلو نیلی آنکھوں والے جن، نورے کی آواز پر ایک شریر سے مسکراہٹ اس کے چہرے پر پالی تھی۔ سیڑھیوں پر پاؤں رکھ کے وہ واپس مڑا، ہاتھوں میں جوس کی کین تھامے وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ وہ ابھی جونیئر اسکول میں تھی لیکن اس کا قد اپنی بہن کی نسبت خاصا لمبا تھا۔ ہیلو نورے چڑیل، کم از کم میری تمہارے جیسے خوفناک نیلی آنکھیں نہیں ہیں۔ ان خوفناک آنکھوں کے پیچھے ایک دنیا پاگل ہے نورے جان۔ وہ ایک دنیا واقعی پاگل ہے اور میں تمہاری جان نہیں ہوں۔ ناک چڑھائے بولنے پر رائت کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بالکل ٹھیک، تم جان کا عذاب ہو۔ I like being someone's doom۔ مزے سے جوس کا سپ لیتی وہ بولی۔ رائت سر نفی میں ہلاتا واپس مڑا تھا جب دوبارہ اس کی آواز پر مڑا۔ تمہاری پارٹنر وہ اینابیلا ہے؟ ایزابیلا، توسیع کی تھی۔ ہاں وہی، سرسری سا بولتے جوس کی کین منہ سے لگائی، لیکن رائت جانتا تھا وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی۔ بولو۔ کیا بولوں؟ جو ابھی بولتے بولتے رکی ہو۔ نورے نے اسے دیکھا اور پھر کین اس کی جانب اٹھاتی ہنس دی۔ امپریسو مسٹر سلطان، تم میرے کہے بغیر سمجھ گئے کہ میں کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں لوگوں کی باڈی لینگویج سے بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اب کی مرتبہ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑا ہوا۔ لیکن پھر بھی تم ماں کو نہیں سمجھ سکے۔ مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی، اب وہ سنجیدہ تھی۔ مون کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا نورے۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو نورے نے اچھے سے محسوس کیا تھا۔ تم جانتے ہو وہ ہرٹ ہوئی ہے، تم نے اسے چھوڑ کر ایزابیلا کو چنا۔ ہم سب جانتے ہیں یہ صرف ایک پرام ہے، لیکن ماں تمہیں لے کر بہت زیادہ ٹچی ہے اور شاید یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتی۔ تم اسے سمجھتے ہو تو یہ بھی سمجھ جاتے کہ تمہارا کسی اور کی جانب متوجہ ہونا بھی اسے ہرٹ کرتا ہے۔ وہ کل اسکول سے آنے کے بعد سے چپ تھی۔ ایک پوائنٹ پر اس نے یہ بھی بولا کہ وہ پرام پر نہیں جائے گی۔ اس نے نہ جانے کی وجہ نہیں بتائی، لیکن میں جانتی ہوں وہ تمہیں ایزابیلا کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کین ریلنگ پر رکھ دی، وہ چند قدم اس کی جانب بڑھی۔ رائد اس کی باتوں کے زیر اثر اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم مزید اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تو اس کی لائف میں اپنا عمل دخل چھوڑ دو رائد۔ وہ اسٹرانگ ہے، لیکن تمہارے معاملے میں وہ عجیب کمزور سی ہو جاتی ہے۔ جس دن تم کسی لڑکی سے ہنس کر بات کرتے ہو
उस दिन वो घर आकर घंटों चुप रहती है और खाना भी नहीं खाती। मुझे वो पागल लगती है, सीरियसली। लेकिन मैं उसको मज़ीद पागल होते नहीं देखना चाहती। नूरे ने चुप होकर उसके मजबूती से भींचे जबड़े को देखा। रेलिंग पर पकड़ इस कदर सख्त हुई थी कि उसका हाथ सफ़ेद पड़ चुका था। वो गुस्से में था। आज प्रॉम था, कल को तुम अपने लाइफ पार्टनर चुनोगे तो मुझे शक है कहीं माँ अपना दिमागी तवाज़न ही न खो बैठे। इसीलिए अपनी बचपन की दोस्ती की खातिर और उसकी खातिर उससे किनारा कशी कर लो। कोट पर से नदीदा धूल झाड़ती वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। राइड ने पहले उसे देखा, फिर अपनी कोट पर उसके हाथ को बहुत नरमी से उसकी कलाई थामे राइड ने अपनी कोट से हटाई और फिर एक झटके से छोड़ दी। नूरी ने माथे पर बल डाले उसे देखा। दुनिया में ऐसा कोई इंसान अभी पैदा नहीं हुआ जो मुझे मून से दूर रहने का बोले। इसलिए अपने काम से काम रखो नूरे, अगली मर्तबा लिहाज नहीं करूँगा। एक सख्त नज़र उस पर डालता वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता लाउंज की जानिब बढ़ गया। पीछे खड़ी नूरे ने नाक चढ़ाई उसे देखा और फिर अपनी हाथ झाड़ती वो मुस्कुरा दी, जैसे कोई काम मुकम्मल होने पर यकगोना सुकून मिला हो। रोशनियों से जगमगाता बड़ा सा हॉल सीनियर स्टूडेंट से भरा था। लड़कियां मैक्सी फ्रॉक या सिल्क गाउन्स, जबकि लड़के ज़्यादातर सूट में मलबूस थे। वो जिस वक्त से आई थी उसकी नज़र गैर इरादी तौर पर कुछ कदम पर खड़े राइड पर थी। सिर्फ राइड नहीं, उसके साथ खड़ी खिलखिलाती हुई इज़ाबेला पर भी। नेवी ब्लू गाउन में वो अपने खुले हुए सुनहरी बालों के साथ वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। ग्रे आंखों में आज अलग ही चमक थी, जैसे वो आज राइड के साथ पर बहुत खुश हो। इज़ाबेला की किसी बात का जवाब देता वो ज़रा सा मुड़ा, नज़र एक तरफ खड़ी माँ पर पड़ी थी। वो उसी को देख रही थी। नीली आंखें माँ की ब्राउन आंखों से टकराई थी। उसकी आंखों के ठंडे तासुरात से माँ को अपनी रीढ़ की हड्डी तक सनसनी फैलती महसूस हुई थी। नज़रें उसकी आंखों से हटाते उसने डैन की तलाश में दौड़ाई, जो वॉशरूम का कहकर उसे 15 मिनट से अकेला छोड़कर गया था। सामने से आते डैन ने उसे देखकर हाथ हिलाया। जवाबन वो भी मुस्कुराई थी। तुम कहाँ चले गए थे? आंखें चोटी किए वो पूछ रही थी। मुझे कुछ दोस्त मिल गए थे वहाँ। किसियानी हंसी हंसता माँ ही दोहराने कोई जवाब नहीं दिया। डैन बगौर उसे देख रहा था। तुम कंफर्टेबल नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ डैन, बिल्कुल ठीक हूँ, ज़बरदस्ती मुस्कुराए जवाब दिया था। मैं तुम्हें कल परसों कुछ माह या कुछ साल से नहीं जानता माहिदौरा। मैं 12 साल से तुम्हारे साथ हूँ और मैं ये भी बता सकता हूँ कि इस वक्त तुम फेक स्माइल ले रही हो और सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर जाना चाहती हो। वो बिल्कुल ठीक था, वो यही चाहती थी। नैन ऐसी बात फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है माहिदौरा। जो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लग रही उसको एक्सेप्ट कर लो। डैन की बात पर उसने गहरा सांस भरा था, जैसे वो वाकई थक सी गई हो। मुझे रायद और इज़ाबेला एक साथ अच्छे नहीं लग रहे डैन। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। इज़ाबेला तुम दोनों की मुझसे पहले की दोस्त है, लेकिन उसके बावजूद मुझे वो रायद के साथ अच्छी नहीं लगती। जब अपनी तवज्जो उसको देता है और जब वो उसके साथ हंसता है, मुझे तकलीफ़ होती है डैन। वो रो देने के दर पर थी, आंसू आंखों में ही चमक रहे थे। डैन हौले से मुस्कुरा दिया। इज़ाबेला उसके लिए सिर्फ दोस्त है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम ज़्यादा मत सोचा करो। मैं भी तो सिर्फ दोस्त हूँ ना डैन, मुझे ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए। उसके बावजूद मैं इमोशनल फूल होकर अपना दिमाग ख़राब करती रहती हूँ। उसके चिड़चिड़े अंदाज पर डैन हल्का सा हंसा था। गालों के डिम्पल वाजे हुए थे। तुम उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं हो माहिदौरा, तुम उसकी मून हो। वो सिर्फ एक नाम है जो राइड ने मुझे दिया था। वो सिर्फ नाम नहीं है यार, वो अपने अलावा किसी को तुम्हें मून नहीं कहने देता। मरने मारने पर आ जाते अगर कोई उसके अलावा तुम्हें मून बोल दे। माँ ने ना समझी से उसे देखा। क्योंकि ये नाम उसने दिया था और उसे नहीं पसंद कोई और उसका दिया नाम इस्तेमाल करे डैन। इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। वो इज़ाबेला को भी बेला बोलता है। वो इज़ाबेला को ऐसे नहीं देखता जैसे तुम्हें देखता है। माँ का सांस एक सेकंड को थमा था। वो मुझे कैसे देखता है? जैसे तुम उसकी कोई कीमती चीज़ हो जिसे वो सबसे छुपाना चाहता हो, जिसे वो किसी से शेयर ना करना चाहता हो, जैसे वो तुम्हारे नाम को शेयर नहीं करता। माँ ने गर्दन मोड़े राइट की जानिब देखा, लेकिन उसका रुख दूसरी जानिब था। तुम्हें याद है जूनियर स्कूल में हालिन ने तुम्हारे बाल खींचे थे?
کیونکہ میں نے اس کی شکایت میم سے کی تھی۔ اور تمہیں یاد ہے وہ اس دن کے بعد 2 ہفتے اسکول نہیں آیا تھا؟ ماں نے آہستہ سے سر ہلایا تھا۔ کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ڈان ہلکا سا ہنسا تھا۔ ماں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ سلطان نے اس کا وہی ہاتھ توڑ دیا تھا جس ہاتھ سے اس نے تمہارے بال کھینچے تھے۔ ماں کی آنکھیں اور منہ بیک وقت کھلے تھے۔ چند لمحے وہ خاموشی سے مسکراتے ڈان کو دیکھتی رہی۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ حال نے تمہیں ہرٹ کیا تھا۔ وہ چپ ہوئی تھی۔ اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ کم پڑ رہے تھے۔ اور ایمیلیا یاد ہے جس نے تمہاری ڈرائنگ بک پھاڑی تھی؟ ہاں یاد ہے۔ اسکول کے بعد سلطان نے واش روم میں بند کر دیا تھا اور 2 گھنٹے وہ رو رو کر اس کی منتیں کرتی رہی تھی۔ سلطان نے اسے اس شرط پر کھولا تھا کہ وہ صبح اسکول آتے ہی تم سے سوری کرے گی۔ ماں نے گہرا سانس بھرا۔ اسے وہ سب باتیں یاد آ رہی تھی جو ڈان اسے بتا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے سوری بھی کی تھی اور مجھے نئی ڈرائنگ بک بھی لا کر دی تھی، لیکن اس نے امیلیا کو واش روم میں کیوں بند کیا تھا ڈان؟ لہجے میں حیرت لیے وہ سرگوشی نما آواز میں بولی، کیونکہ تم رو رہی تھی اور سلطان اپنی اون کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سلطان اپنی اون کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آنسو قید کرنے کے باعث اس کی آنکھیں اب جل رہی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، بلکہ وہ اس وقت صرف ایک شخص کے سامنے رونا چاہتی تھی جو چند قدم پر کھڑا تھا۔ ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں تمہیں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں سلطان کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا۔ ڈمپل دکھاتا وہ مسکرایا تھا۔ تمہیں ان سب باتوں کا کیسے پتہ؟ میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، میں اسے کور کرتا تھا۔ دانت نکالے وہ جس انداز میں بولا تھا ماں نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی تھی۔ اس وقت سلطان جن نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ڈر ہے رات ختم ہونے سے پہلے میں ہاتھوں کے بغیر رہ جاؤں گا۔ ڈان کی نظر ماں کے پیچھے تھی۔ ماتھے پر بل ڈالے ماں نے گردن موڑی، رائے کی جانب دیکھا جس کا رخ اب ان کی جانب تھا۔ ماتھے پر بل واضح تھے، جیسے اس کو صورتحال اچھی نہ لگ رہی ہو۔ میں باہر جا رہی ہوں ڈان۔ واپس ڈان کو دیکھتی وہ بولی، میں چلوں تمہارے ساتھ؟ نہیں، میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں کچھ دیر۔ بات مکمل کرتی وہ ڈان کی جانب ہلکی سے مسکراہٹ اچھالتی بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر نکل کر وہ چلتی ہوئی پارکنگ کی جانب آئی۔ ارادہ واپس جانے کا نہیں تھا۔ وہ مزید ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خود کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ ڈان کی باتیں اسے مزید کنفیوز کر گئی تھی۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ تم گھر جانا چاہتی ہو؟ عقب سے اچانک آواز پر وہ فوراً مڑی۔ رائے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ماں نے آنکھیں گھمانے سے خود کو باز رکھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہوا تو میں چلی جاؤں گی۔ تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے، اس وقت اکیلی کیسے جاؤ گی؟ وہ رک گئی، ہاتھ سینے پر باندھے، عین اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تمہیں ایک مرتبہ کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی رائے؟ تمہیں میرے پیچھے ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ جاؤ، واپس جاؤ ایزابیلا کے پاس۔ ماہ دوراں وہ رکا تھا، وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ ماں بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے رائے؟ میں نہیں جانتی۔ ماہ دوراں وہ رکا تھا، وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ ماں بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے رائے؟ میں نہیں جانتا یار۔ بالوں میں ہاتھ پھیرے، پیچھے سیٹ کیے بال بکھرائے تھے۔ تو جاؤ، جاؤ اور جانو، اس طرح مجھے اور خود کو کنفیوژن میں مت رکھو۔ وہ واپس مڑ گئی۔ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اب کی مرتبہ ماہ دورہ نے دانت کچکچائے تھے۔ مجھے گھر نہیں جانا، اور جانا بھی ہوا تو میں ڈان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ بالوں پر چلتا ہاتھ رکا تھا، ماتھے پر بل ڈالے اس نے ماں کو دیکھا۔ تم ڈان کے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ مضبوط لہجہ تھا۔ ماں نے رخ موڑے، ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ تم کون ہوتے مجھے یہ کہنے والے؟ میں اکیلی جاؤں یا ڈان کے ساتھ جاؤں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ چند قدم اٹھائے، اس نے درمیانی فاصلہ کم کیا۔ ماں اس کی آنکھوں میں غصہ محسوس کر سکتی تھی۔ تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو ماہ دورہ۔ میں نہیں رائے، تم امتحان لے رہے ہو، اپنا بھی اور میرا بھی۔ تم آخر بتا کیوں نہیں دیتے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنی مرضی سے ایزابیلا کو پارٹنر بنایا ہے، اور پھر تم نے پورے فنکشن میں مجھ سے بات نہیں کی، اور اب تمہیں میرا اور ڈان کا ساتھ برا لگ رہا ہے۔ میں تمہاری دوست ہوں رائے، اور مجھے ایک دوست کی طرح ٹریٹ کرو، بالکل ویسے جیسے تم ایزابیلا کو کرتے ہو۔
बात के अख्तिताम पर उसका सांस फूल चुका था। आंसू अब आंखों से निकलने के लिए बेताब थे, जिन्हें मजीद पहरा बांधे उसने रोका। एक ये आंसू हमेशा गलत वक्त पर निकलने आ जाते। राइड ने खामोशी से उसे देखा। पहले वाला गुस्सा कहीं दूर जा चुका था। अब वो माँ का गुस्से से भरा चेहरा देख रहा था। जो तुम हो वो इज़ाबेला नहीं है। धड़कन एक लम्हे को बढ़ी थी। मैं क्या हूँ? वो हल्का सा चीखी थी। गर्दन उठाए वो दराज का राइड की नीली आंखों में देखती पूछ रही थी। तुम मून हो, मेरी मून। मैं तुम्हें क्या, तुम्हारे नाम को भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारी आंखों की चमक और तुम्हारी तवज्जो मैं सिर्फ खुद तक महदूद रखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मौजूदगी में सुकून मिलता है। तुम्हें एक नज़र देखकर मेरा सारा दिन अच्छा गुजरता है। तुम्हारी मुस्कुराहट यहाँ मेरे दिल तक पहुँचती है। जब तुम हर्ट होती हो, जब तुम रोती हो, तो मुझे तुम्हारे आंसू अपने दिल पर गिरते हुए महसूस होते हैं। तुम्हें रोता देखकर मेरा दिल चाहता है मैं इंसान का वजूद ख़त्म कर दूँ जो तुम्हारे रोने का बाइस बना है। ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, इज़ाबेला या किसी दूसरे तीसरे के लिए नहीं। वो सांस लेने के लिए रुका। माँ हल्का सा मुंह वाकी उसे देख और सुन रही थी। मैं नहीं जानता ये सब क्या है और क्यों है, लेकिन मैं तुम्हारे मामले में खुदगर्ज हो चुका हूँ। अगर तुम मुझे पागल समझ रही हो तो हाँ, बिल्कुल मैं पागल ही हूँ। तुम्हारे मामले में मैं वाकई बाकी के अल्फाज मुंह में रह गए। आंखें खोले उसने माँ को देखा, जो करीब खड़ी गाड़ी के बोनट से टेक लगाए चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रो रही थी। राइड ने गहरा सांस भरा था, फिर कुछ फासला रखे वो भी गाड़ी के बोनेट से टेक लगाए खड़ा हो गया। कई लम्हे यूं ही खामोशी में गुजरे थे। वो अभी भी रो रही थी और राइड उसकी हल्की हल्की सिसकियाँ सुन रहा था। अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लगती हैं तो आई एम सॉरी, लेकिन तुम इस तरह रो मत। मैं तुम्हें हरगिज़ हर्ट नहीं करना चाहता था। लहजे में नरमी पैदा किए वो हल्की सी आवाज़ में बोला था। तुम ये सब मुझे पहले भी तो बता सकते थे राइड। तुमने इतना टाइम लगा दिया। हम 12 साल से साथ हैं और तुम कभी भी अपने दिल की बात नहीं कह सके। हाथ हटाकर वो गर्दन ज़रा सी तिरछी किए उसे देखकर बोली, रोने के बाईस आंखें लाल और आवाज़ भारी हो रही थी। गॉड, मैं नहीं जानता था मेरे साथ क्या मसला है। मुझे लगा था ये सब बचपना है, लेकिन बचपन गुजरने के बाद भी ये आदतें पुख्ता होती गईं। मैं मज़ीद तुम्हारे नज़दीक होता गया और बाकी सारी दुनिया को तुमसे दूर करने की कोशिश करने लगा। राइड बगौर उसकी रोई रोई सूरत देखकर बोला, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो राइड। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, डैन भी नहीं, कोई भी नहीं। उसके मुंह से निकला एक एक लफ्ज़ राइड के दिल को पुरसुकून कर रहा था। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरी माहे दौरा बनकर रहो। उसकी बात पर माहे दौरा सर गिराए हंस दी। माहे दौरा सिर्फ राइड सुल्तान की है। नम आंखों से वो मुस्कुरा कर बोली और राइड को लगा था जैसे कई सालों का वज़न एकदम उसके दिल से उठ सा गया हो। वो उसकी थी और उसकी ही रहने वाली थी। बड़ा सा डाइनिंग टेबल हर तरह के लवाजमात से भरा था और डाइनिंग के इर्द गिर्द रखी कुर्सियों पर वो 3 ख़ानदान मौजूद थे। यूसुफ सुल्तान ने उन चारों को सीनियर स्कूल ख़त्म होने की खुशी में सुल्तान मेंशन में डिनर रखा था। सरबराही कुर्सी पर यूसुफ सुल्तान पूरे क्रोफर से विराजमान थे। वो डार्क ग्रे डिनर सूट में मलबूस थे, राइट जैसे ब्राउन बाल और रीम जैसी ब्राउन आंखें लिए। अगर कहा जाए कि राइड उनकी जवानी की तस्वीर है तो गलत नहीं होगा। लगभग 50 साल के करीब होने के बावजूद उनकी बारौब शख्सियत बरकरार थी। उनके दाएं बाएं बाकी दोनों फैमिलियों के सरबराह थे, जबकि उनकी औलादें उनसे आगे वाली कुर्सियों में बैठे एक दूसरे से गपशप में मसरूफ़ थे। हल्का फुल्का माहौल सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाए हुए था। राइड की नज़र अपने बिल्कुल सामने बैठी माँ पर थी। हाई वेस्ट पैंट पर ऑफ वाइट हाई नेक पहने उसने अपने सियाह बाल ऊंची पोनी टेल में कैद किए थे। चेहरे पर मेकअप ना होने के बराबर था। वो मुसलसल अपने दाएं बाएं बैठी नूरे और रीम से बातों में लगी उसे नज़रअंदाज किए हुए थे। राइड के साथ बैठे डैन ने जमाई भरे उसे देखा। क्या बोरियत से भरपूर डिनर है। उसकी आवाज़ में भी बोरियत झलक रही थी। तो जाओ, बैठे क्यों हो? मेरे वालिदैन भी यहाँ मौजूद है, जा भी नहीं सकता। एक और जमाई ली थी।
दफतन नज़र हाइट के साथ बैठी नूरे पर पड़ी। वो पूरे सियाह लिबास में थी, सियाह पैंट्स, सियाह स्वेटर और सियाह कंधों तक बाल खुले छोड़े थे। लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढले थे। हेलो मिस मिलाना फाइल। डैन की आवाज़ पर राइट समेत सब ने उसे नासमझी से देखा, लेकिन नूरे ने उसकी नज़रें खुद पर महसूस की थी। हेलो डैनी। दांत निकाले नूरे उसी के अंदाज में बोली, इट्स डैन। ओके डैनी, लहजे में ज़रा सा भी फ़र्क लाए बगैर वो बोली थी। डैन ने अब माथे पर हल्के से बल डाले उसे देखा। वो उसे कम ही बुलाती थी, लेकिन जब भी बुलाती थी उसका नाम गलत ही लेती थी, बल्कि जानते बूझते गलत लेती थी। मैंने सुना तुमने फिर से स्कूल में किसी का नाक तोड़ दिया है। नूरे नाक तोड़ने में माहिर थी और ये काम वो बेशतर मर्तबा स्कूल में सर अंजाम दे चुकी थी। एक पंच नाक पर और काम ख़त्म। अब नाक टूटता भी या नहीं उसका नहीं पता, लेकिन नूरे द नोज़ ब्रेकर मशहूर हो चुकी थी। स्कूल का नहीं पता, लेकिन आज डाइनिंग टेबल छोड़ने से पहले तुम्हारा नाक ज़रूर टूट जाएगा। नूरे। हाथ की आवाज़ पर नूरे ने कंधे उचकाए, उसे देखा और फिर अपने खाने की जानिब मतवज्जा हो गई। डैन ने दांत निकाले, अपने डिम्पल वाजे किए थे। नूरे की नज़र उसके गालों पर पड़ी। चंद सेकंड के लिए हाथ में पकड़ा कांटा स्टिल हुआ था और फिर सर हिलाए वो दोबारा प्लेट की जानिब मतवज्जा हो गई। हान, तुम्हारे स्टूडियो का काम कहाँ तक पहुँचा? डैन के डैड की जानिब से सवाल आया था। सेंट्रल लंदन में मुझे स्टूडियो के लिए प्रॉपर्टी मिल गई है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर हालत में नहीं है। आजकल उसी की रेनोवेशन में लगे हैं। सबकी नज़रें हाथ पर थी। उसका लहजा नर्म मुहज़्ज़िब सा। गुड, मैंने लीड्स में तुम्हारे फ्रेम देखे थे, बहुत अच्छा काम था तुम्हारा। आप वहाँ थे? मैंने आपको नहीं देखा। लहजे में हैरत और खुशी नुमाया थी। एक क्लाइंट के साथ था, थोड़ी देर के लिए रुका था। तुम्हारा नाम देखा तो पता चला वो तुम्हारे फ़ोटोग्राफ्स थे। हाथ सीने पर रखे हल्का सा झुक कर मुस्कुरा दिया। किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो बिला झिझक कह सकते हो। ये यूसुफ सुल्तान थे। शुक्रिया अंकल, लेकिन मैं अपना करियर खुद बनाना चाहता हूँ। ये टाइम टेकिंग है, लेकिन मेरा खुद का बिल्ड किया होगा। उसकी बात पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैली थी। और एक तुम्हारा बाप है जो तुम्हें अपने जैसा बुरा इंजीनियर बनाना चाहता है। यूसुफ की बात पर सब हल्का सा हंस दिए। जैसे तुम अपने बेटे को बिजनेस की तरफ लेकर जाना चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ हाथ इंजीनियरिंग की तरफ जाए, लेकिन अब मैं इत्मीनान में हूँ। वो जो कर रहा है उसमें परफेक्ट है। मुराद आलम की बात पर हाथ ने मुस्कुराकर अपने बाप को देखा। मुझे नहीं लगता ये दो किसी भी तरफ जाएंगे सिवाय जिम और अपनी गेम के। चम्मच मुंह की तरफ लेकर जाते डैन ने आंखें छोटी की, पहले अपने बाप और फिर साथ बैठे राइट को देखा। ये हमें बीच में क्यों ला रहे हैं? सरगोशी की थी। इनकी नज़र में हम नालायक हैं। डैड, हम नालायक नहीं हैं, फॉर गॉड सेक। अगली बात राइट की साइड पर कहने से मुंह में ही रह गई। मेरे बोले बगैर तुम समझ गए कि तुम क्या हो। इस सब सिचुएशन से जो सबसे ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी वो नूरे थी। हंसी को खांसी में तब्दील करती वो पानी का ग्लास मुंह से लगा गई। बदले में डैन ने उसे घूरी से नवाजा था। तुम्हारी फ़ोटोग्राफी की हमारे घर में एक बहुत बड़ी फ़ैन है। मिसेस सुल्तान के बताने पर हाथ समेत बाकी सब ने भी नासमझी से उन्हें देखा। रीम ने सांस रोके झुका सर मज़ीद झुकाया था। सीरियसली मॉम? कौन? हाथ ने पूछा। रीम। हालांकि रीम को आर्ट में इतनी दिलचस्पी नहीं, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे बहुत सारे फ्रेम इसने अपनी स्टडी में लगाए हैं। ये एक नया इंकशाफ था जो रीम ने तकरीबन सबसे छुपा कर रखा था। हाथ ने मुस्कुराते हुए सर झुकाए रीम को देखा। थैंक यू रीम। रीम ने सर उठाया, एक नज़र उसके मुस्कुराती आंखों में देखा, फिर हल्का सा सर हिला दिया। हाथ ने उसके गालों पर फैली सुर्खी बहुत अच्छे से नोट की थी। खूबसूरत। पूरे टेबल पर कोई नफूस खामोश था तो वो जैन था, जो एंड डिनर के वक्त पर टेबल पर पहुंचा था और किसी भी गुफ्तगू में हिस्सा लिए बगैर अपने खाने की जानिब मतवज्जा था। हाथ ने उसे 2-3 मरतबा बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो सर हिलाकर उसकी बात का जवाब देता, फिर से अपने आप को मसरूफ़ कर लेता। वक्त के साथ साथ उसने अपने आप को अपनी ही दायरे में कैद कर लिया था। वो फैमिली डिनर और खाने के टेबल पर कम ही बैठता था। जब रीम और रायद उसे बुलाने जाते तो वो काम का बहाना बनाते, तसल्ली से इनकार कर देता। यूसुफ सुल्तान से जितना दूर रहा जा सकता था वो रहता था। बचपन से उनकी ताने तंज और जली किटी सुनते हुए
اب وہ خود کو ان کی باتوں سے حد درجہ بچائے رکھتا تھا۔ البتہ ریم، رائد اور روزی سے اس کا رویہ کبھی نہیں بدلا تھا۔ یوسف کی غیر موجودگی میں وہ ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ رائد اور ریم کے ساتھ وہ اکثر آؤٹنگ کے لیے بھی جاتا تھا، لیکن ان کے باپ کی موجودگی میں وہ ان سے بھی کچھ فاصلہ اختیار کر لیتا تھا۔ وجہ یوسف کو ذہن کا اپنے بچوں سے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں تھا۔ کرسی گھسیٹنے کی آواز پر سب رائد کی جانب متوجہ ہوئے، جو اپنی جگہ سے کھڑا ہوئے اب سب کو دیکھ رہا تھا۔ اگر معاملہ سنگین ہو گیا تو میں کہہ دوں گا، میں تمہیں نہیں جانتا۔ ڈین کی سرگوشی پر رائد نے آنکھیں نکالے اسے دیکھا، پھر واپس سب کو ایک نظر دیکھتا وہ سربراہی کرسی کی جانب بڑھا، جہاں سے اسے سب کے چہرے بخوبی دکھائی دے رہے تھے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہم سن رہے ہیں، یوسف کے جواب پر رائد نے سر ہلایا۔ ماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پوچھنا چاہا، جسے نظر انداز کرتا وہ باقی سب کی جانب متوجہ ہوا۔ سینئر اسکول ختم ہو چکا ہے اور ڈیڈ چاہتے ہیں میں اپنی ہائر ایجوکیشن اسٹیٹس میں جا کر مکمل کروں۔ خاموشی چھائی تھی اور ماں اسٹیٹس کا نام سن کر کرسٹل ہوئی تھی۔ وہ جا رہا تھا اور اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کے سامنے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اب آپ جو مرضی سمجھ لیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا عین ماں کے کرسی کے پیچھے کھڑا ہوا۔ ماں کا پہلے سے اٹکا سانس مزید اٹکا تھا۔ گردن موڑے اس نے پیچھے کھڑے رائد کو دیکھا۔ اس کے تاثرات پرسکون تھے، لیکن باقی سب کو اس نے بے سکونی میں ڈال رکھا تھا۔ پینٹ کی جیب سے ایک ویلویٹ کی ڈبیا نکالتا وہ اپنی ایک گھٹنے پر بیٹھا اور پھر نیلی آنکھیں سامنے بیٹھے لڑکے پر مرکوز کی۔ ڈین باقاعدہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ اب منظر صاف دکھائی دے رہا تھا اور ماں کی آنکھیں اور منہ کھلا تھا، اور انہی کھلی آنکھوں سے وہ ایک نظر رائد اور ایک نظر سامنے کھلی ڈبیا میں موجود رنگ کو دیکھ رہی تھی۔ نورے اور ریم نے ہاتھ منہ پر رکھے باقاعدہ اپنی ایکسائٹمنٹ کے مارے نکلنے والی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ کرسی دھکیل کر ماں اب اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، ہاتھ پینٹ پر ملتے اس نے ہاتھ میں آئے پسینے کو صاف کیا۔ رائد، یہ سب کیا ہے؟ پرام میں بولا تھا نا کہ میں تمہیں شیئر نہیں کر سکتا، تو میں تمہیں واقعی شیئر نہیں کر سکتا۔ میں لائف ٹائم کے لیے تمہیں خود سے منسلک کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بچپن سے ساتھ تھے، لیکن اس وقت کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی گمان نہیں کیا تھا۔ فارمیلٹیز میں مت پڑو سلطان، مدعے پر آؤ۔ ڈین کے پرجوش آواز پر رائد ہلکا سا ہنسا تھا۔ یہ سب مجھے یونیورسٹی کے بعد کہنا چاہیے تھا، لیکن میں بغیر کسی کمٹمنٹ کے اتنی دور نہیں جانا چاہتا۔ لمحے بھر کو خاموشی چھائی تھی۔ میری می، ماہ دورہ مراد عالم؟ اوکے، وہ پوچھ نہیں رہا تھا، وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ جواب جانتا تھا۔ اسے خود اور ماں سے اپنے رشتے پر اعتماد تھا۔ تھوک نکل کر ماں نے نظریں اٹھائی، کچھ دور بیٹھے اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ ان کے چہرے سنجیدہ تھے اور پھر اگلے لمحے ان کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ مراد نے سر کو ہلکا سا جنبش دیے اسے گویا اجازت دی تھی۔ ان کی اجازت پر اندر تک سکون کی لہر اتری تھی۔ نظریں ان سے ہٹتی رائد کے والدین پر رکی۔ یوسف سلطان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے فیصلے سے خوش تھے، اور روزی دونوں ہاتھ سینے پر رکھے وہ ہر طرح کی شفقت اور محبت آنکھوں میں لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آخر میں نظر اپنے پیارے بھائی کی جانب اٹھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، یعنی وہ خوش تھا۔ وہاں موجود سب لوگ خوش تھے۔ اب کی مرتبہ ماں کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ نظریں واپس نیلی آنکھوں کی جانب آئیں۔ بایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ماں نے سر ہلاتے ہاں کہی تھی۔ اس کے جواب پر مسکراتے رائد نے رنگ ڈبے سے نکال کر اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈال دی تھی۔ ماں نے ہاتھ اپنے چہرے کے نزدیک کیا۔ وہ آدھے چاند کی شکل میں بنی انگوٹھی تھی، جس کے اندر بلا شبہ ہیرے جڑے تھے۔ مون، اس نے اپنی مون کو اس کے نام جیسی انگوٹھی ڈالی تھی۔ رائد، یہ بہت خوبصورت ہے۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک لی وہ سرگوشی میں بولی تھی۔ صرف تم خوبصورت ہو مون۔ ایک لمحے کو ٹیبل پر خاموشی چھائی تھی، اور دوسرے ہی لمحے ڈین نے چمچ گلاس پر مارتے جشن کا اظہار کیا تھا۔ باقی سب اس کی حرکت پر ہنسے تھے۔ سب اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے رائد اور ماں کی جانب آتے انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ تم میری طرف دیکھتی تو میں نے سر دائیں بائیں ہلانا تھا ماہ دورہ۔ ڈین کی بات پر ماں ہنسی تھی، جبکہ رائد نے آنکھیں نکالے اسے دیکھا تھا۔ تبھی اس نے تمہاری طرف نہیں دیکھا۔
वो अपने इतने अच्छे लम्हे को तुम्हें देखकर ख़राब नहीं करना चाहती थी। नूरे के जवाब पर डैन ज़रा सा भी असर लिए बगैर डिम्पल दिखाता हंस दिया। उसके डिम्पल देखते नूरे ने झुरझरी भरे नज़रें फेरी थी। अब मैं तुम्हें ऑफिशियल अपना कह सकता हूँ। मैं हर हालत में तुम्हारी थी राइन, और हमेशा रहने वाली हूँ। वो एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। नीली और भूरी आंखों से उस वक्त सिर्फ मोहब्बत झलक रही थी। एक नए सफ़र का आगाज़ होने वाला था। बेड पर आड़ी तिरछी लेटी वो लैपटॉप सामने खोले यूनिवर्सिटियों के स्कॉलरशिप के लिए वेब साइंस खंगाल रही थी। उनका रिजल्ट आ चुका था और हमेशा की तरह माह और रीम राइद और डैन से आगे थी। राइद ने तो स्टेट्स चले जाना था, जबकि डैन उसके बगैर लंदन में रहे ये नामुमकिन था। लेकिन फ़िलहाल वो अपने वालिदैन को मनाने में नाकाम जा रहा था। बकौल उनके, डैन उनकी इकलौती औलाद थी। वो उसे खुद से दूर नहीं भेजना चाहते थे। रीम और माह ने एक ही यूनिवर्सिटी में जाने का सोचा था। माह का इरादा बिजनेस पढ़ने का था, जबकि रीम ने इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जाने का इरादा किया था। बुलंद वाला हॉर्न की आवाज़ पर माह ने माथे पर बल डाले दरवाजे की जानिब देखा। ये बाइक का हॉर्न था, और हाथ की बाइक का इतना खौफनाक हॉर्न बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो बाइक कम ही इस्तेमाल करता था। बाइक उसकी ग्रेजुएशन पर डैडी ने उसे गिफ्ट की थी, लेकिन उसे बाइक्स में दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी ड्रीम कार ख़रीदना चाहता था, और उसके लिए उसे पहले अपना करियर सेट करना था। हॉर्न मज़ीद 2-3 मरतबा बजा था। तिनक का लैपटॉप बंद करते वो बैल्कनी खोलकर बाहर निकली। रेलिंग से नीचे देखने पर उसकी आंखें पूरी की पूरी खुली थी। राइड बाइक के साथ टेक लगाए, हेलमेट हाथ में पकड़े, बैल्कनी की जानिब भी देख रहा था। वहाँ पर नज़र पड़ते उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आई थी। नीचे आओ, हाथ हिलाए वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला था। माँ सर हिलाती वापस कमरे में आई, हैंग हुआ कोट पहनती वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। कुछ याद आने पर वो वापस मुड़ी थी। ड्रेसिंग का दराज खोलकर अपनी मतलूबा चीज़ थामकर कोट की जेब में डाली और कमरे से बाहर निकल गई। गेट से बाहर निकलते तक नूरे उससे पहले बाहर पहुंच चुकी थी। गालिबन वो भी हॉर्न की तेज़ आवाज़ सुनकर बाहर निकली थी। वाओ! गालों पर हाथ रखे नूरे पुरजोश अंदाज में तकरीबन चीखी थी। माँ ने आगे बढ़ते राइड और फिर उसकी बाइक को देखा। वो सियाह रंग की स्पोर्ट्स बाइक थी, जो देखने में ही इतनी मगरूर सी मालूम हो रही थी। नज़रें वापस राइड की जानिब आईं। वो ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक पैंट में मलबूस मुकम्मल बाइक राइडर मालूम हो रहा था। यामाहा R1 आवाज़ नूरे की जानिब से आई थी। वो बाइक्स की दीवानी थी। हाइट की बाइक चलाने के शौक़ में वो कई मर्तबा मामा और डैडी से डांट भी खा चुकी थी। हाथ के तल्ले करने पर भी वो उसे सिखाने पर राज़ी नहीं हुआ था। राइड ने नूरे के सवाल पर सर अज़वात में हिलाया। 18वीं सालगिरह का तोहफ़ा। एक हफ़्ता पहले वो और रीम 18 साल के हो चुके थे, और हमेशा की तरह राइड ने 5 मिनट बाद रीम से केक कटवाया था। तो बकौल उसके वो 5 मिनट बड़ा था, तो पहले केक काटने का हक भी उसका था। उसके लहजे से खुशी झलक रही थी। वो और डैन जूनियर स्कूल से बाइक्स खरीदना चाहते थे, जिनकी इजाज़त उन्हें नहीं मिल सकती थी। मुझे तो इसे देखकर खौफ आ रहा है, देखो कैसे देख रहा है। माँ की बात पर राइड ने हल्का सा कहका लगाया था, जबकि नूरे ने आंखें छोटी किए बेयकीनी से बहन की जानिब देखा। ये बाइक है मून, कोई जानवर थोड़ी है। ये जानवर से भी ख़तरनाक दिखाई दे रहा है। कम ऑन माँ, तुम बाइक को जानवर नहीं कह सकती, इसकी तौहीन होती है। नूरे नज़दीक जाते बाइक पर हाथ फेरते बोली, तो मुझे राइडिंग सिखाओगे राइड? हाथ थोड़ी के नीचे रखे वो आंखें टिप टिपा कर बोली, 18 साल की हो जाओ पहले। हाथ वाला जवाब सुनकर उसने बुरा सा मुंह बनाया था। तब तुम स्टेट्स में होगे और हाथ मुझे किसी सूरत नहीं सिखाएगा। खबरदार नूरे, ये ख़तरनाक हो सकते है। तुम्हारी इतनी जान नहीं है कि तुम ये बाइक हैंडल कर सको। माँ ने आगे बढ़ते उसका हाथ थामे पीछे किया था। बहुत बोर हो तुम माँ, माथे पर बल डाले मुंह के जाविये बनाती वो घर की जानिब बढ़ गई। इसे पहन लो। राइड ने हेलमेट उसकी जानिब बढ़ाया। वो राइड के हेलमेट की निस्बत छोटे साइज़ का था। मैं इस पर बैठकर कहीं नहीं जा रही। बाइक को देखते वो सर दाएं बाएं हिलाए बोली। राइड उसके डर पर सर पीछे गिराए हंसा था। बाइक मैं चलाऊंगा मून, इजी हो जाओ।
हेलमेट उसके सर पर रखकर सेट करता वो अपना हेलमेट पहने बाइक पर बैठा। सर के इशारे से माँ को पीछे बैठने का इशारा किया। आंखें एक मर्तबा बंद करके खोलती वो उसके पीछे बैठी। दोनों हाथों की मुट्ठियों में उसकी जैकेट को जकड़ा। जैकेट मत पकड़ो मून, मुझे मजबूती से पकड़ लो। नहीं, मैं ऐसे ठीक हूँ, जैसे तुम कहो। उसका लहजा शरीर सा था। हेलमेट के अंदर से माँ ने आंखें निकाली, उसके हेलमेट में बंद सर को देखा। बाइक स्टार्ट हुआ था और उसके इंजन की आवाज़ से माँ को अपना दिल एक मर्तबा बैठता महसूस हुआ था। एक लम्हे वो अपने घर के सामने खड़े थे और दूसरे ही लम्हे वो सड़क पर किसी आंधी तूफान की तरह उड़ रहे थे। आहिस्ता चलाओ राइल, मुझे अपना आप उड़ता हुआ महसूस हो रहा है। बाइक, हवा और हेलमेट के बाइस वो करीबन चीख कर बोली थी। जवाब में राइट का कहका सुनाई दिया था। तुम बस जैकेट को मजबूती से पकड़े रखो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। हम जा कहाँ रहे हैं? वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज, माँ का पसंदीदा स्पॉट। तकरीबन 20 मिनट के हवाई सफ़र के बाद वो वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज पर थे। सर्दी ज़ोरों पर थी, लेकिन बर्फ़बारी के आसार नहीं थे। हेलमेट उतार कर वो चंद लम्हे अपना सर राइट के कंधे पर रखे अपने हवास बहाल कर रही थी। इतनी सी बात थी। मुझे लग रहा है मेरा डिनर किसी भी लम्हे बाहर निकल आएगा। अपना हेलमेट उतारे राहिद ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। फिर वो बाइक से उतरा। तुम्हें आदत हो जाएगी। कभी भी नहीं, मैं इस जानवर की कभी भी आदत नहीं डालूंगी। राहिद उसके चिढ़े अंदाज पर हंसा था। सर्दी के बायस उसका नाक सुर्ख हो चुका था। तुमने मेरी आदत डाल ली तो इसकी भी डाल लोगी, क्योंकि अब से नो कार, ओनली बाइक। बाइक की सीट पर जोर से हाथ मारता वो जोर से बोला। माँ सर नफ़ी में हिलाए, हेलमेट सीट पर रखती बाइक से उतरी। वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज उसकी पसंदीदा जगह थी, जहाँ से बिग बैन, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और लंदन आई का खूबसूरत नज़ारा पेश होता था। वो राइड के साथ यहाँ पहले भी कई मर्तबा आ चुकी थी। सर्द हवा किसी थप्पड़ की तरह मुंह पर लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो ब्रिज के किनारे पर आंखें बंद करके खड़ी रात के ठंडे और पुरसुकून लम्हात को महसूस कर रही थी। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। आवाज़ पर आंखें खोले उसने साथ खड़े राइड को देखा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि तुम्हें यहाँ आना पसंद है, और वैसे भी मैं पहली राइड तुम्हें देना चाहता था। वो मुस्कुराया था और बदले में वो भी मुस्कुराई थी। नीली आंखें रात की रोशनियों में जगमगा रही थी, जिंदगी से भरपूर। समुंदर के पानी जैसे उसकी आंखें माँ को अपने दिल तक उतरती महसूस होती थी। तुम्हारी आंखें मेरा सबसे पसंदीदा नज़ारा है राइड, क्योंकि तुम इन्हें अपनी खूबसूरत आंखों से देखती हो। उसकी आंखों से नज़रें हटाई माँ ने आसमान की जानिब देखा। साफ आसमान पर पूरा चांद पूरे क्रोफर से जगमगा रहा था, जिसका अक्स नीचे ठहरे दरिया के पानी पर भी पड़ रहा था। द मून इज़ ब्यूटिफुल इज़न्ट इट? माँ के सवाल पर राय ने एक नज़र आसमान के चांद को देखा, फिर साथ खड़ी लड़की को। नॉट मोर देन माई मून। राहिद के जवाब पर माँ ने गर्दन मोड़े हल्की सी हैरत लिए उसे देखा और फिर सर झुकाए वो हंस दी। उसने कहीं पढ़ा था कि जापानी ज़ुबान में अपने एहसासात का बिला वास्ता इजहार करने के लिए लोग चांद को खूबसूरत बोलते हैं, लेकिन शायद राइड इस बात को नहीं जानता था। हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं। सर नफ़ी में हिलाए वो वापसी के लिए मुड़ी। बाइक की जानिब बढ़ती वो रुकी। पीछे मुड़कर अपनी जानिब बढ़ते राइड को देखा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। राइड ने नज़दीक पहुँचकर सवालिया नज़रों से उसे देखा। कोट की जेब में हाथ डालकर उसने एक सिल्वर बैंड निकाला। हाथ बढ़ाकर राइड का बायां हाथ थामे बैंड उसकी तीसरी उंगली में डाला था। राइड ने एक नज़र उसके मुस्कुराते चेहरे और फिर अपने हाथ को देखा। ये इतना महंगा नहीं है, मैंने अपनी सेविंग से ख़रीदा है। मैं चाहती थी मेरी तरह तुम्हारे हाथ में भी ये निशानी होनी चाहिए, ताकि देखने वाले को पता चल सके कि तुम किसी से मंसूब हो चुके हो। मेरे लिए ये बहुत कीमती है, क्योंकि ये मेरी मून ने ख़रीदा है। उसके जवाब पर माँ के चेहरे पर रौनक सी आई थी। वापस चलते हैं, तुम्हारी नाक सर्दी की वजह से सुर्ख हो चुकी है। हंसकर कहता वो हेलमेट उसके सर पर रखता बाइक पर सवार हुई उसे स्टार्ट करने लगा। ओह माय गॉड, आज का फिर से सारे के सारे एपिसोड को रीड करते हुए मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम का कोई अमेरिकन रोमांटिक वेब सीरीज़ देख रही हूँ, लेकिन हमारे इस
रोमांटिक वेब सीरीज़ में एक मुश्किल भी है, एक मर्डर भी है, जो हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में ही देख लिया है। तो फुल ऑन मसालेदार पैकेज वाला ये हमारा वेब सीरीज़ टाइप साउंड कर रहा है। और इस नावल को पढ़ते हुए मुझे थोड़ी बहुत यारम नावल की भी याद आई। यारम मेरा वन ऑफ द फेवरेट नावल है, तो इस वजह से मुझे वो याद आ रहा था, क्योंकि उसमें नावल में हम लोगों ने पूरे के पूरे मैनचेस्टर को एक्सप्लोर किया था और यहाँ हम लंदन सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो देखते हैं आगे क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। आई होप वो जो डैन है ना, मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा ज़्यादा मस्तीखोर हो, बिल्कुल हमारे बिल्कुल हमारे काल की तरह। मुझे काल की बहुत याद आती है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर नैन वो थोड़ा मज़ाकिया है, थोड़ा मस्तीखोर है, तो उसकी मस्तियाँ काल की मुझे याद दिलाएं, ऐसा मैं चाहती हूँ। ठीक है, हम मिलते हैं कल। ओके, टाटा, बाय।